लेकिन अभी आपको बराह रास्त ले चलें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 12 under, 10 under. I think all of these boys, all of these girls who were here, they performed of applause, and I would also like to appreciate the enthusiasm of the parents and the families of these young boys and girls who were here, who really supported these people and provided a lot of encouragement for them to compete and to win. Congratulations to all the winners for providing such great sports, and best of luck to the runner-ups for the coming events. And my compliments to Mansoor Ali Khan Sahab as well. He's played a major part in organizing this event. And with regard to facilities, I think we have the best talent in the world. We have great swimmers, and you know, when I was just talking to the organizers, I said, you know, we've had such great coaches as well. You know, Kiran Khan has made such a name for herself the world over. And swimming is one sport where Pakistan can excel in the future. We would like to see many of these young boys and girls perform in the future, reach the SAF Games, the Asian Games and Olympics one day. And you know, I have great hope that there will come a day when we will have a medal in the Olympic swimming competition. So, you know, I can see how excited these young boys are and the way that they've performed. This is a very, very healthy competition, a healthy sport, and on behalf of the government, I would like to assure you that we would go an extra mile to provide facilities, because this infrastructure here in which they competed is not sufficient. There is, on my left, you can see an Olympic-sized pool, you can see the dilapidated condition, and you can see that even the diving boards are not there. So at this platform, I would like to make an announcement that my Prime Minister Shehbaz Sharif has total focus on encouraging young boys and girls, and especially sportsmen who have skill and talent. So we would like to announce that we will be renovating this pool and providing world-class facilities to our boys and girls and our children to ensure that they have the proper infrastructure, they have the facilities required to reach the international level, to compete at the global stage. And once again, I really, you know, I've seldom been so emotional, because these young boys and girls have really touched our hearts, the way they've performed, the way they've competed, you know, with vigor, with dedication, with sportsman spirit. And I wish them all the best for the future. And I hope to see many of them at the international stage, winning medals and making their parents and their country proud. Pakistan Zindabad. वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस्लाम स्विमिंग चैंपियनशिप से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान ने कहा है कि वादी तीरा में मुनशियात के कारखाने लगे हुए हैं, यही पैसा दहशत गर्दी के लिए भी इस्तेमाल होता है। ज़िला खैबर से मुनशियात पूरे मुल्क में स्मगल होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मुनशियात के धंधे में PTI के लोग मुलवस हैं, मुनशियात का पैसा सरहद पार भी जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक ज़िला खैबर से है। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा किया कि ज़िला खैबर में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई करें। जिस वज़ीर आला के हल्के में मुनशियात तैयार हो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले दिनों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपको आगाह किया था कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला वादी तीरा में मुनशियात के कारखाने लगे हुए हैं और वहाँ से गर्दा, चरस, अफीम, आइस, हीरोइन, बहुत सारी चीज़ें तैयार होकर वो मुल्क के तूलो अर्ज़ में बल्कि बॉर्डर क्रॉस भी उसकी स्मगलिंग होती है। हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ये मुतालिबा किया था कि आपका ताल्लुक चूँकि उसी हल्के, उसी ज़िले से है, आप ज़िला खैबर से हैं और वादी तीरा डिस्ट्रिक्ट खैबर में आता है, तो आप इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें ताकि पता चले कि आपको इस मुल्क के अवाम से, इस सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से, अपने ज़िले खैबर के अवाम से और कबायली नौजवानों से मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये कारोबार, ये जहर का कारोबार जो है ये बंद हो और नौजवानों को तबाही के रास्ते से अलग किया जाए और वो रास्ते सारे बंद किए जाएं। लेकिन
उन्होंने उसको डिनाई किया। फिर अपने मुशीर इत्तलात के ज़रिए उन्होंने उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये बात गलत है, ये लग़्व है, ये झूठ पर मबनी है। फिर वही वज़ीर इत्तलात साहब हमारे साथ एक टीवी शो में बैठे आज से कुछ 5-6-7 दिन पहले, तो उनको मैंने कहा कि आप किसी भी काम से पहले सबसे पहले ये करें कि जो चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को सो कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है, मैं तो उसको निक्का वज़ीर आला कहता हूँ, छोटू वज़ीर आला, तो छोटू वज़ीर आला के छोटू से वज़ीर ने मुझे कहा कि मैं आपको चैलेंज देता हूं कि वहां पर ऐसा कारोबार नहीं है। उस शो के एंकर पर्सन ने ये कहा कि कैमरा, मैंने उनको कहा कि कैमरा और माइक लेकर चलते हैं वादी तिरा डिस्ट्रिक्ट खैबर में, वहां पर देखते हैं कि भंग का कारोबार है कि नहीं है, वहां पर ये चर्स और गर्दे और हशीश और ये हीरोइन तैयार होती है कि नहीं, वहां पर फसल उगती है कि नहीं, 3,500 एकड़ से जायद ज़मीन पर यह कारोबार हो रहा है कि नहीं। तो उन्होंने फरमाया कि मैं इख्तियार वली साहब आपको चैलेंज देता हूँ, जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं, कि आपको चैलेंज देता हूँ। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं और आप कौम को गुमराह कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने एक वीडियो लाए हैं जो मैं नहीं कह रहा, जो एक थर्ड पार्टी कह रहा है, और वहाँ का मुद्दई वहाँ के रिहायशी शलोबर कबीले और कौम के लोग, जहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की अपनी ज़मीनें हैं, अपने खेत हैं, जहाँ पर ये भंग की काश्त, उसकी फसल तैयार है, कटी हुई पड़ी है, और इस पे अभी ये जो ओस है उसके लिए वो रखी गई है कि ये पक्की हो जाए, फिर ये मार्केट में मनशियात इससे तैयार होगी और फिर वो पूरे तूल अर्ज़ में वो जाके वो फैलेगी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि अवाम को भी ये पता है, मालूम है, वहाँ के लोकल रिहायशियों को, वो जो आपको बता रहे हैं कि ये ज़मीन सारी ये वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब की है, ये उनकी मलकियत है, और ये फसल जो है ये तैयार पड़ी है। तो मैं तमाम हुकूमत को जो खैबर पख्तूनख्वा की है, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी कहता हूँ कि अब आप इसको डिनाई करें। अब आप इस मुल्क की मीडिया को, जो कोहना मश्क एंकर पर्सन्स हैं, सहाफ़ी हैं, उनको लेकर जाएं, रियासती इदारों को लेकर जाएं, और साथ में कुछ थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स को लेकर जाएं कि वहाँ पर मज़ीद इंस्पेक्शन हो, ताकि आपका झूठ जो है वो कौम के सामने, अगर आप में हिम्मत है तो आप करके दिखाएं। अदरवाइज हम इस बात पर कायल हैं कि जो आपकी ज़ेरी सरपरस्ती, आपसे पहले अली अमीन भी ये बंद नहीं करा सका, उससे पहले महमूद खान भी बंद नहीं करा सके, क्योंकि इसकी कमाई और इस मनशियात के धंधे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान, तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो वज़ीर हैं, जो करते धरते हैं और आला ओहदेदार हैं, वो सब इसमें हिस्सेदार हैं। इन सब को भत्ता मिलता है। ये पैसे जो इकट्ठे होते हैं और कमाए जाते हैं इस कबीह कारोबार से, इस नामुराद और मुर्दार कारोबार से, ये जो पैसे कमाए जाते हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, ये रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, ये रियासत पर हमलों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, रियासत पर हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। यही पैसा फिर टेररिज्म में इस्तेमाल होता है, यही पैसा अक्रॉस द बॉर्डर, फिर बॉर्डर के उस पार भी जाता है, उस पार वहाँ पर सिविलियन लोगों में भी जाता है और टेररिस्ट में भी बंटता है, जो जिससे गोला बारूद, जो आज मेरे मुल्क में गोला बारूद की और फ़िज़ाएँ जो है वो आलूदा हो चुकी हैं बारूद की बू से, ये पैसा उसमें इस्तेमाल होता है, हमारे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस और हमारी अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल। कौमी असम्बली के चेयर पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग पुरअमन अंदाज में जारी है। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोधा, मियाँ वाली और मुजफ्फरगढ़ में वोटिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है और सुबह पोलिंग का आगाज सुस्त रवि से हुआ। बेशतर मकामात पर वोट डालने वालों की तादाद बहुत कम थी, पोलिंग स्टेशन पर रश दिखाई नहीं दिया, तमाम वक्त गुजरने के साथ पोलिंग की
की रफ्तार निस्बतन बेहतर होती जा रही है और वोटर्स पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। अभी तक मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक किसी भी पोलिंग स्टेशन पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। पोलिंग के लिए इन हल्कों में 2792 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जिनमें से 408 इंतहाई हसास करार दिए गए। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 20,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जबकि सिविल आर्म फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। पाक फौज को रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर तैनात किया गया है। वोटिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। जिस तरह के 6 और पंजाब असेंबली के 7 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। NA 18 हरिपुर, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 185 डेरा गाजी खान, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। हम पंजाब के मुख्तलिफ हल्कों में जो इलेक्शन हो रहा है उस पर अपने नुमाइंदगान से तफसील जानेंगे। उस्मान भट्टी हमारे साथ मौजूद होंगे, इसके अलावा सलीम बुज़दार हमारे साथ मौजूद होंगे और इरफानुल्लाह फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। उस्मान भट्टी, आप कहाँ मौजूद हैं? किस हल्के में पोलिंग टर्नआउट सूरत हाल कैसी है? जी, लाहौर के हल्का 129 में ज़िमनी इंतखाब का जो वोटिंग का अमल है वो जारी है। मैं इस वक्त जो हल्का 129 है इसमें गुलशन आबी है, सब्ज़ादार है और दीगर जो लाहौर के एरियाज़ हैं, काफ़ी बड़ा ये हल्का है और ऑलमोस्ट 5,58,000 के करीब वोटर्स की तादाद है। और अभी आपने एक बात कही जब आप बता रहे थे कि अभी किसी भी पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं ऑलमोस्ट कुछ 13 सीटों पर हो रहे हैं। जो 6 हैं वो सूबाई असम्बली के साथ जो हुकूमी असम्बली की हैं। और नाखुशगवार वाक़या पेश आने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो इस वक्त इंतज़ामिया है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। होता ये है कि जब एक पार्टी को इंतज़ामिया फेवर दे रही हो तो दूसरी पार्टी का कैंडिडेट होता है वो फिर उस पर एजिटेट करता है। अभी तक हमने भी काफ़ी पोलिंग स्टेशन जो है वो विज़िट किए हैं। ऑलमोस्ट 334 जो है वो पोलिंग स्टेशन हैं। यहाँ पर NA जो 129 है, हमने किसी जगह ये नहीं देखा कि इंतज़ामिया किसी को फेवर दे रही हो किसी कैंडिडेट को। सब के लिए सेम रूल्स हैं। सब लोगों की जो भी वोटर्स वोट डालना चाहता है उसको जो है वो प्रॉपरली वॉक थ्रू गेट से गुजारा जाता है, उसको चेकिंग की जाती है। ID कार्ड हो तो उसको अलाउ किया जाता है कि वोट कास्ट करके आ जाए। और किसी भी पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई भी किसी पार्टी के बंदे को अलाउ नहीं है कि वो नारेबाजी कर सके। ठीक है, उस्मान भट्टी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद से इरफानुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइए आप किस हल्के में फैसलाबाद में मौजूद हैं और पोलिंग का अमल अभी तक कहाँ तक पहुँचा और कब तक वोटिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी, मैं हल्का NA 104 है, वहाँ का इलाका है हाजियाबाद, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आज सुबह से ही हम इस हल्के के अंदर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पे ये सूरत हाल है कि सिक्योरिटी के इंतजामात हमने देखेंगे बहुत अच्छे हैं। जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे भी सारे इंतजामात बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो एक इशू हम देख रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं राजा दानियाल, उनके मुकाबले में 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं। इन सब को हम देख रहे हैं कि एक परेशानी ज़रूर पेश आ रही है, वो है टर्न आउट के कम होने की। अब जबकि सिर्फ 1.5 घंटा बाकी बचा है और बहुत कम वक्त रह गया है, अब यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं उनकी थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा बढ़ी है और उसमें उनके सपोर्टरान जो हैं अब कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो घरों से निकाला जाए, उनको पोलिंग स्टेशनों तक पहुँचाया जाए। तो इसलिए हम वो भागदौड़ तो ज़रूर यहाँ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इसी मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इरफानुल्लाह, वापस आपकी तरफ आएंगे। सलीम बुज़दार से भी हम सूरत हाल जानेंगे। डेरा गाजी खान से अता तारड़ को सुनते हैं पहले। और जितनी हमारी टीम वो निकली हुई हल्के के अंदर पोलिंग कैंप्स को विज़िट कर रही हैं और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा नून लीग का टर्नआउट है। फैसलाबाद में भी, डेरा गाजी खान में भी, साहिवाल में भी, लाहौर के अंदर भी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला PMLN की एक वाज़ेह बरतरी होगी और जिस तरीके से लोग निकले हैं वोट कास्ट करने। और इवन साउथ पंजाब के अंदर जिस तरह मैंने डेरा गाजी खान की आपको एग्जांपल दी महमूद कादिर लगारी के लिए, तो इट्स अ वेरी वेरी इनकरेजिंग ट्रेंड कि इवन वो लोग जो साइलेंट हो गए हुए थे वो भी अब निकल के वोट कास्ट करें। इसकी वजह परफॉर्मेंस है कि इस गवर्नमेंट ने जिस तरीके से मियां शहबाज शरीफ ने परफॉर्म किया, पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज करती है, शहबाज शरीफ को मानती है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पंजाब में परफॉर्म किया और देखिए एक ओवरऑल एक कोहीजन है मुल्क के अंदर, एक सिनर्जी है, एक जंग जीते हैं। और एक जिस तरीके से पाकिस्तान का पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को एक्नॉलेज किया है, पाकिस्तान की इकॉनमी को एक्नॉलेज किया है, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स को एक्नॉलेज किया है, मैं समझता हूँ कि ये आज का इलेक्शन ये परफॉर्मेंस के और डिलीवरी के नाम होगा। देखिए
इतलात गुफ्तगू करते और इस वक्त वापस आएंगे फैसलाबाद। इरफानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। इरफानुल्लाह, एक बार फिर से आप बताएं, फैसलाबाद में इस वक्त पोलिंग स्टेशंस में क्या सूरत हाल दिख रहे हैं? जी, अमूमन जो होता है कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो है वो 27% या 30% तक जो है वो टर्न आउट जो है वो आता है, और ये कम ही होता है हमेशा से कौमी जो इंतखाबात उनके मुकाबले में। लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा चैलेंज बना हुआ है कि इस वक्त जो टर्न आउट सामने आ रहा है वो तकरीबन 14% से लेके 17% तक है, और इसीलिए जो उम्मीदवार हैं अब वो उन्होंने अपनी भागदौड़ बढ़ाई है। उनके जो सपोर्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लोगों के घरों में जाके उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि तो वो निकलें और पोलिंग स्टेशन पे पहुँचे और अपना वोट कास्ट करें ताकि जो टर्न आउट ठीक है। फैसलाबाद से इरफानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। सलीम बुज़दार डेरा गाजी खान से हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, बताइएगा वहाँ की सूरत हाल है? वजी यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सुबह से जो कि लोगों का रश कम था, दोपहर के बाद से आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफ़ा होता गया, टर्न आउट कुछ बेहतर हुई। पहले तो वो 10 से 15% टर्न आउट यहाँ पे 1 बजे तक रिकॉर्ड किया गया था, अब उसके बाद 25% तक आ गई है। लोग निकलने लगे हैं दोपहर के खाने से फ्री होके और अपने तमाम, चूँकि आज इतवार का दिन था, लोग घरों में आराम कर रहे थे, देर से आए हैं। दोपहर के बाद से हमने देखा है कि पोलिंग स्टेशंस पे रश बढ़ना शुरू हो गया है पहले की निस्बत। अगरचे वो जनरल इलेक्शन वाली सूरत हाल तो नहीं है, ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह बताया जाता है कि वैसे भी टर्न आउट कम रहता है, वहाँ पे लोगों की आमद का सिलसिला। और ख़ुसूसन यहाँ पे खुशाइंद बात ये देखी गई है कि ख़वातीन बड़ी तादाद में मर्दों की निस्बत ज़्यादा आई हैं पोलिंग स्टेशंस पर। जिन पोलिंग स्टेशंस पर हम अब तक जा सकें, चूँकि ये हल्का NA 185 226 पोलिंग स्टेशन पर मुश्तमिल है, जिसमें DG खान शहर, तहसील कोटचुटा शहर और उसके मुज़ाफ़ाती इलाक़े शामिल हैं। मजमूई तौर पर अब तक की किसी किस्म की कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तलात हमें मौसूल नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद उस्मान खालिद ने हमें बताया वक्तन फवक्तन इस हवाले से आपको अपडेट करते लेंगे। लाहौर में उस्मान भट्टी, फैसलाबाद से इरफानुल्लाह, जबकि DG खान से सलीम बुज़दार ने हमें अपडेट का बहुत शुक्रिया। इस सूरत हाल से हालिया ज़िमनी इंतखाब से जियो न्यूज़ आपको लम्हा ब लम्हा आगाह रखेगा। यहाँ